Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Do you know your momentum? In this video here, we are going to be discussing the graphs between hollow conducting spheres. और वो graphs दो तरह के होते हैं, electric field with positions या फिर electric potentials with positions. Okay, so let's get started. Before we actually begin with the graphical analysis, मैं आपको जरा formulas याद करवाना चाहता हूँ. Electric field strength का एक formula है. Electric field strength equals to 1/4 pi epsilon naught q divided by r square. तो यहाँ से the electric field strength actually comes out to be inversely proportional to the square of distance, whereas the electric potential V is defined as 1/4 pi epsilon naught q divided by r. तो यहाँ से हमें पता चला कि electric potential is inversely proportional to r only. So imagine that you have a sphere, a hollow sphere that has charge on its boundary. Let's say it's a positively charged sphere. Okay, and we now need to construct a graph. जिस graph में y axis के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ मौजूद हो और x एक्सिस के ऊपर डिस्टेंस मौजूद हो. इसी तरह फिर मैं एक ग्राफ आपको बना के दिखाऊंगा जिसमें y एक्सिस के ऊपर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा और x एक्सिस के ऊपर डिस्टेंस होगा. ऑब्वियसली जो फॉर्मेलिटीज हैं वो आप खुद पूरी कर सकते हैं ग्राफ की. यहाँ पर है न्यूटन पर कूलम और यहाँ पर होगा वोल्ट्स. ठीक है, ये चीजें आप खुद देख सकते हैं. आई एम जस्ट गोइंग टू एक्सप्लेन द शेप ऑफ द ग्राफ्स हियर. ओके, inside the sphere there will be no electric field strength because the electric field lines are actually negative chasing. So inside the sphere there is no negative charge, there must be no electric field line which must be pointing inwards. There is a chance that there may be electric negative charge outside the sphere towards infinity, right? So that is why the electric field strength inside the sphere will be zero and electric field strength outside the sphere will be maximum but decreasing as you move away from the sphere. So imagine that you are positioned at this point x equals to 0. अब जैसे जैसे बाउंड्री की तरफ जाते हैं there will be no electric field strength inside the sphere क्योंकि कोई electric field line अंदर की तरफ नहीं जाएगी. So when you reach exactly at the distance that is equal to the radius of the sphere, that's when the electric field strength increases to a maximum value. And let's call this value to be E. Now, we know that the electric field strength is inversely proportional to the square of distance. That means when this x becomes 2r, that's when the electric field strength should drop down by a value of 4. So if this is E, then this must be E by 4. So आपका जो दूसरा point आएगा, that's going to be somewhere here. When it becomes 3r, that's when the electric field strength drops down to E by 9. That's where your next point is going to get plotted. So you join these points. This is what the graph of electric field strength with the distance should look like. Okay. All right. The peak value of electric field strength, ये वाली वैल्यू निकालने के लिए आपको हमेशा से 1/4 pi epsilon naught q divided by r square ये फॉर्मूला अप्लाई करके इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ निकालनी पड़ेगी. या ये भी हो सकता है कि ये क्वेश्चन में आपको गिवन हो. ठीक है, तो आपको ये बात पता होनी चाहिए एट द सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इज मैक्सिमम. एक बात और यहां पर बता रहा हूं, वेरी इंपॉर्टेंट. Electric field strength is a vector quantity. That implies that if it is towards right, it must be positive, and if it is towards left, it must be taken as negative. हम usually यहाँ पर सिर्फ electric field strength का magnitude plot करते हैं, but that's not always the case. Okay, electric field strength is a vector quantity. That means rightwards is positive, and if there is an electric field strength which is towards left, leftwards is negative. Okay, next let's move on to electric potential. We must remember that electric field strength is equal to delta V by D, right? If this electric field strength inside the sphere is 0, this means either this delta V is 0 or this D is infinity. Why? Because we remember that anything over infinity is 0. अभी मैंने आपको यहाँ पर sphere के बारे में बताने की कोशिश की कि electric field strength inside is 0 because there is no field line pointing towards the center of the sphere. Okay, so let's see. Electric field strength is inversely proportional to D. Electric field strength will be 0 only if D is infinity. Or electric field strength will be 0 if delta V is 0, right? This means अगर अंदर electric field strength 0 है, इसका मतलब है कि अंदर वाली साइड के ऊपर potential difference at every position must be 0. Potential difference must be 0. That means if you want to draw a graph of electric potential, it must be same everywhere. क्योंकि देखिए delta V तो होता है ना V2 minus V1. अगर V2 और V1 किसी भी पोजीशन पर, इसकी बात कर लें, इसकी बात कर लें, इसकी बात कर लें, इसकी बात कर लें, जो मर्जी पोजीशन आप चूज करें, अगर वो दो पॉइंट्स हमेशा सेम पोटेंशियल पर होंगे तो ये V2 और V1 दोनों एक जितने होंगे. That is why delta V will be 0. That is why inside the electric field strength must be 0. Okay, so let's see. इस exact position पर जहां पर हम उसके रेडियस पर स्टैंड करते हैं, यहां तक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मस्ट हैव अ कांस्टेंट मैक्सिमम वैल्यू. दिस इज व्हेन x इक्वल्स टू r. जब ये 2r के बराबर हो या जब ये 3r के बराबर हो तो क्या होगा? हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इज इनवर्सली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ओनली. दैट मींस व्हेन इट बिकम्स 2r द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल शुड ड्रॉप डाउन बाय हाफ. जब ये r डबल होगा तो ये v हाफ हो जाएगा ना, और जब ये 3r होगा तो ये v by 3 हो जाएगा, 1/3 रह जाएगा. ठीक है, so this is how you plot your points and then you join it. The graph is pretty similar to electric field strength except this 0 region where electric field strength is 0 inside, whereas electric potential has a constant maximum value inside the sphere. फिर उसके बाद जो ग्राफ है वो भी दोनों केसेस में
उसकी वाई एक्सिस की वैल्यू कम होती जाती है, लेकिन ज्यादा ड्रास्टिक चेंज इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ के केस में आता है, क्योंकि वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ वाज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, अनलाइक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जहां पर स्क्वायर नहीं है, सिर्फ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर के ओनली. Okay, this was the case 1. Let's move on where we discuss about combinations of charges. Case 2. केस नंबर 2 में हम बात करेंगे दो स्फीयर हों, ओके, और दोनों पॉजिटिवली चार्ज हों और दोनों पर इक्वल मैग्नीट्यूड भी हो चार्ज का. ठीक है जी, ये नेसेसरी कंडीशंस यहाँ आपको बता रहा हूँ. इनमें से चीजें चेंज होंगी तो ग्राफ की शेप चेंज होना शुरू हो जाएगी. ठीक है, लेट मी जस्ट गेट अ स्फीयर हियर. ओके, दिस इज माय स्फीयर 1 एंड दिस हियर इज द स्फीयर 2. दोनों पर मैंने एक जितना चार्ज डेवलप करना है. ठीक है, और पॉजिटिव चार्ज डेवलप करना है. ठीक है, ये भी पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है, ये भी पॉजिटिव है, और दोनों पर एक जितना चार्ज है. ठीक है, ये भी इंडिकेट कर देता हूँ कि Q1 इक्वल्स टू Q2 है. ओके, लेट्स सी, एक एक्सिस बना लेते हैं जरा यहाँ पर. राइट, सो आई हैव दिस एक्सिस हियर जिसपे यहाँ पर मैं रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ प्लॉट करूंगा. रिजल्टेंट दैट मींस दोनों की किसी भी पर्टिकुलर इंस्टेंस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड्स हैं उनको ऐड करके जो जवाब आएगा वो हमने ग्राफ के ऊपर प्लॉट करना है. यहाँ पर हमारे पास ऑब्वियसली डिस्टेंस है, कुछ इंपॉर्टेंट डिस्टेंसेस यहाँ इंडिकेट कर लेता हूँ. दिस वैल्यू ऑफ डिस्टेंस इज एक्चुअली इक्वल टू द रेडियस ऑफ द फर्स्ट स्फीयर. दिस यहाँ से लेके यहाँ तक ये इसका दूसरे वाले का रेडियस होगा. ठीक है जी, यहाँ से यहाँ तक दिस मस्ट बी R2. यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है R2, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो है R1, वो मैंने यहाँ पे R1 से इंडिकेट कर दिया था. ओके, नाउ लेट्स सी. अब इनसाइड द फर्स्ट स्फीयर, ये वाला Q1 जिसमें चार्ज है, इनसाइड द स्फीयर द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इज गोइंग टू हैव अ जीरो वैल्यू, क्योंकि वो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था. जैसे ही आप सरफेस पे पहुंचते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ रीचेस टू अ मैक्सिमम वैल्यू. सो लेट्स यूज ब्लैक कलर टू प्लॉट दैट. ग्राफ अचानक मैक्सिमम पे जाता है, फिर उसके बाद ग्राफ की वैल्यू आहिस्ता आहिस्ता कम होती जाती है. अब देखिएगा, आप ये बात थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है. एट एनी पोजीशन, यहां पर मैं ब्लैक पॉइंट से, ब्लैक डॉट से कुछ पोजीशंस इंडिकेट कर रहा हूं. इस वाली पोजीशन पर लेट्स कॉल इट ए, इसको बी कह देते हैं, सी कह देते हैं, डी कह देते हैं, ई एफ जी. इफ आई एम प्रेजेंट एट पॉइंट ए, पहले वाले स्फीयर की इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ E1 is going to have this value. Now at this position, because position A ये पहले वाले स्फीयर के करीब है, जबकि पोजीशन ए जो है वो दूसरे वाले स्फीयर से दूर है, इसलिए एट पोजीशन ए दूसरे वाले स्फीयर की जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है दैट मस्ट हैव अ वेरी स्मॉल वैल्यू E2. मैं एरो की लेंथ से आपको इंडिकेट करके दिखा रहा हूं. इसका ये मतलब हुआ कि एट पोजीशन ए द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ शुड हैव अ वैल्यू दैट इज स्मॉलर देन E1 बट टुवर्ड्स राइट. देखिए, लेट्स से जस्ट फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन, अगर यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है 10 और दूसरे वाले की इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है 1, तो जो रिजल्टेंट आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ वेक्टर है, so if you add them up it must be 10 plus minus 1. So electric field strength is going to have a slightly lesser value than E1. But as you continue to move towards right, what happens? क्योंकि ये दोनों स्फीयर्स एक जितने चार्ज पर हैं, D must be of the position that is the central point. At the central point, E1 की वैल्यू कम हो चुकी होगी, जबकि E2 की वैल्यू बढ़ चुकी होगी towards the left. So at position D, both the electric field strengths they have equal values but opposite directions. That is why at exact center the electric field strength यानी resultant जिसकी मैं बात कर रहा हूँ it should be zero. क्योंकि इक्वल एंड ऑपोजिट होंगे. लेट्स से E1 की वैल्यू कम होकर 5 होगी, पहले 9 थी, पहले 10 थी, कम होकर 5 हो गई. अब इसकी वैल्यू पहले 1 थी और अब कम होकर 5 हो गई, लेकिन क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ डी वाली पोजीशन पर दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगी, इसलिए वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ शुड ड्रॉप डाउन टू अ वैल्यू ऑफ 0. नाउ एज वी मूव टुवर्ड्स दिस पोजीशन G, E1 और ज्यादा कम हो चुकी होगी और छोटी हो चुकी होगी, क्योंकि E1 क्या थी, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ द फर्स्ट स्फीयर, और G वाला पॉइंट जो है वो पहले स्फीयर से सबसे ज्यादा दूर है, इसलिए G वाली पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ पहले स्फीयर की सबसे वीक होगी, जबकि E2 यानी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ द सेकंड स्फीयर इट मस्ट हैव अ वेरी लार्ज वैल्यू. बट बिकॉज पॉजिटिव स्फीयर से इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ वेक्टर होती है, E2 is towards the left, that means at position G there must be a large value of electric field strength but towards the left. That is why सेंट्रल पोजीशन के बाद ये जो ग्राफ है ये नेगेटिव साइड पे ग्रो करना शुरू कर देता है. ठीक है जी, ओके, सो लेट मी शो यू. दिस इज व्हाट द ग्राफ विल लुक लाइक. यहाँ पर 0, फिर इंक्रीज होके जितनी इधर वैल्यू थी उतनी ही मैक्सिमम वैल्यू तक वो ग्रो करेगा. जैसे ही हम स्फीयर की सरफेस पर पहुंचेंगे द ग्राफ इज गोइंग टू ड्रॉप डाउन टू 0 और फिर इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ विल बिकम 0 अगेन. दिस पॉइंट इज कॉल्ड द बैलेंस पॉइंट और द जीरो फील्ड लोकेशन. ओके, शुक्र है ये बात होपफुली अभी तक हमें समझ आती है. इसी तरह मैं यहाँ पर अब नीचे एक ग्राफ बना रहा हूँ जिसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को प्लॉट करूंगा इन वोल्ट्स और यहाँ पर डिस्टेंस को प्लॉट करूंगा इन मीटर्स. ये छोटी छोटी फॉर्मेलिटीज जो है ये आप खुद पूरी कर लीजिएगा, प्लीज डोंट जज मी बिकॉज ऑफ दीज. नाउ दोनों स्फीयर पॉजिटिवली चार्ज हैं, so I'm going to write down a note here for you. Electric potential near a positive charge is repulsive
that means electric potential is positive, whereas the electric potential near a negative charge is attractive, that is V is negative. अच्छा जी, अब देखते हैं, जब मैं पोजीशन ए पर मौजूद हूं, आई एम नियर अ पॉजिटिव चार्ज, ऑलराइट, I am near a positive charge. So that means I must have a larger, that position must have a larger electric potential. But as you continue to move away from point A, you are actually moving away from the positive charge. That means the electric potential should keep decreasing. But electric potential, it's a scalar quantity. स्केलर क्वांटिटी है, इसका मतलब है पोजीशन डी पर पहुंचकर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पहले स्फीयर का कम हो चुका है, लेकिन दूसरे वाले का ज्यादा भी तो हुआ ना, बड़ा भी तो है। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ यहाँ जीरो इसलिए हुई थी क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ दोनों स्फीयर्स की इक्वल एंड ऑपोजिट होकर कैंसिल हो सकती थी किसी पोजीशन पे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैंसिल आउट नहीं हो सकता यहाँ पर क्योंकि ये दोनों ही पॉजिटिव चार्जेस हैं। एज यू आर मूविंग अवे फ्रॉम वन पॉजिटिव, यू आर मूविंग टुवर्ड्स अनदर पॉजिटिव, सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू डिक्रीज तो हो सकती है लेकिन जीरो नहीं हो सकती इन दिस केस। लेट्स सी, ये पहले वाले स्फीयर का रेडियस है और यहाँ पर ये जो पोजीशन है ये दूसरे वाले स्फीयर का रेडियस होगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज स्टार्टिंग ऑफ बाय अ मैक्सिमम वैल्यू, बट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कीप्स डिक्रीजिंग like this. It shouldn't go down to zero because central position के बाद you start moving closer to another positive. So the electric field strength, electric potential keeps increasing again like this. Because दोनों पॉजिटिवली चार्ज हैं, दोनों पर एक जितना चार्ज है, इसीलिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू भी एक जितनी ही है मैक्सिमम। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, दैट इज व्हाई ये कर्व बना है, इनवर्स प्रोपोर्शनलिटी के लिए कर्व बनता है। यहाँ जीरो इसलिए नहीं हुआ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिकॉज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ बोथ द स्फीयर्स एट दिस पोजीशन इज वेरी लेस, बट इट इज पॉजिटिव, इट इज अट्रैक्टिव। अट्रैक्टिव पोटेंशियल्स सेम स्केलर क्वांटिटीज हैं, इसीलिए वो दो स्केलर क्वांटिटीज एड अप होकर कभी जीरो नहीं हो सकती। दैट इज व्हाई इस वाली पोजीशन के ऊपर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो नहीं हुआ है। ओके, अब इनमें से अगर किसी एक का मैं इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ा देता, यानी किसी एक का चार्ज बढ़ जाता, लेट्स से मैं कहता हूं, यहां पर बना के देखते हैं, इनके इनके ऊपर जो चार्ज है ना वो मैं इनके साइज से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। लेट्स से ये छोटा मैंने बनाया, इसका मतलब है इमेजिन करें ये जो छोटा स्फीयर है ना इसके ऊपर कम चार्ज है। ग्राफ की शेप्स पर कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ पोजीशंस थोड़ी सी चेंज हो जाती हैं। लेट्स कॉल दिस टू बी केस नंबर 3, टू spheres with positive but unequal charges. So let's see. इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का पहले ग्राफ बनाते हैं। अब हमें ये बात पता है क्योंकि इन पर चार्जेस एक जितने नहीं है, एक पर चार्ज ज्यादा है दूसरे पर चार्ज कम है, तो जो वो पोजीशन जहां दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इक्वल एंड ऑपोजिट होती है ना, वो फिर सेंटर में तो नहीं हो सकती। व्हाई? बिकॉज दिस स्फीयर, स्फीयर 1 हैज अ हायर अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन इट, दैट इज व्हाई उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जैसे जैसे हम दूर जाते हैं कम तो होती जाती है, लेकिन क्योंकि ये सेकंड स्फीयर की फील्ड स्ट्रेंथ वीकर है, दैट इज व्हाई जो बैलेंस पॉइंट है जहां पर दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एक जितनी होगी इक्वल एंड ऑपोजिट, वो बैलेंस पॉइंट बड़े स्फीयर से दूर होगा और छोटे वाले स्फीयर के करीब होना चाहिए। ठीक है, एग्जैक्ट सेंटर में तब होगा जब दोनों पर स्फीयर, दोनों स्फीयर पर चार्जेस एक जितना होंगे। तो मैं यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट पोजीशंस दिखा देता हूँ। Alright, let's try and draw the graph. Inside this sphere, electric field strength must be zero. Inside this sphere, the electric field strength must also be zero. But at the surface of the sphere, the electric field strength should have the maximum value like this. It should decrease like this until at this position where the electric field strengths become equal and opposite. And then उसके बाद electric field strength छोटे वाले sphere की stronger होने लग जाएगी, बड़े वाले sphere की छोटी होने लग जाएगी. So that is why the resultant electric field will become negative now. बट नेगेटिव होने के लिए उसके पास ज्यादा जगह थी नहीं, जैसे ही आप बाउंड्री में पहुंचेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ अपनी मैक्सिमम वैल्यू रीच करेगी, उसके फौरन बाद नीचे आनी शुरू हो जाएगी। दिस इज व्हाट द ग्राफ इज गोइंग टू लुक लाइक। यहां मैं बता देता हूं, दिस इज द जीरो फील्ड लोकेशन इज skewed towards the less charged sphere। आप ये भी नोटिस करेंगे कि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, इसकी वैल्यू E2 और ये E1 was greater than E2, वो इसलिए क्योंकि E1 was the field strength at the surface of a larger charge, तो वहां पर field strength जाहिर है ज्यादा होगी, whereas the electric field strength at the surface of the other charge particle, the smaller one, that's when electric field strength has a smaller value। Okay, so this is what it should look like। इसी तरह इसका अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बनाने की कोशिश की जाए, यहाँ पर अगर पोटेंशियल हो, यहाँ डिस्टेंस हो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमें पता है कि वो रेडियस से छोटी वैल्यूज पर कांस्टेंट होता है, जीरो नहीं होता। All right, let's see. यहाँ से यहाँ तक it must have a higher electric potential. It should drop down, but it should never become zero. This was the zero field location. Electric potential यहाँ पर decrease हुआ था, फिर उसके बाद यहाँ से आगे increase हुआ था, but to a lesser value at the surface of the other sphere.
ठीक है जी। तो मिनिमम पॉइंट हैज नाउ शिफ्टेड टुवर्ड्स द लेसर चार्ज स्फीयर। तो ये हमारे पास मिनिमम पोटेंशियल पॉइंट है टुवर्ड्स द स्मॉलर चार्ज स्फीयर। ऑलराइट, नाउ इफ दे वर नेगेटिव चार्जेस, इफ दे वर नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स, तो फिर क्या होना चाहिए था? फिर देखते हैं। अगर ये दोनों स्फीयर्स इक्वल एंड ऑपोजिट वाले, अगर ये नेगेटिव चार्जेस होते तो फिर कैसे होता? केस नंबर 4 हम इसको कह लेते हैं। टू इक्वल एंड सेम charged spheres, but in this case they must be negative. Alright, ये दो स्फीयर है मेरे पास, ये नेगेटिव्स हैं, एक जितना नेगेटिव है। Now try and identify that because it is negatively charged, इनके बीच में उसी तरह मैं 3-4 अलग अलग पॉइंट्स दिखा देता हूँ, A B C D करके। ए वाली पोजीशन के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ये पहले स्फीयर की सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगी, जबकि दूसरे स्फीयर की इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ वीकर होगी। आप एरो की डायरेक्शन देखें, इन दिस केस ये नेगेटिव चार्जेस हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ पॉइंट या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉइंट टुवर्ड्स द नेगेटिव। ओके, तो आप नोटिस करेंगे कि एट पोजीशन ए सॉरी, द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट हैव अ नेगेटिव वैल्यू। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एक तरह की वेक्टर क्वांटिटी है। सो यहाँ पर ये वाला रेड एरो और ये वाला रेड एरो जब आप एड अप करेंगे तो जवाब तो लेफ्ट की तरफ आएगा ना। दैट इज व्हाई एट पोजीशन ए द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ मस्ट हैव अ नेगेटिव वैल्यू। दैट इज व्हाई यहाँ पर ये रेडियस में दिखा रहा हूँ, यहाँ से फिर से रेडियस दिखाता हूँ। सो द ग्राफ शुड लुक लाइक दिस, यहाँ से यहाँ तक तो फिर से जीरो है, लेकिन इसकी सरफेस के ऊपर अचानक इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ शुड हैव अ नेगेटिव मैक्सिमम वैल्यू। फिर जैसे जैसे हम इससे दूर जाते जाएंगे स्फीयर से, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की रिजल्टेंट वैल्यू कम होती जाएगी। फिर एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पर 1 की इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ और 2 की इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इक्वल एंड ऑपोजिट हो जाएंगी। दैट्स वेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ शुड बिकम जीरो, एंड बिकॉज दे आर इक्वल चार्जेस द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ शुड बिकम जीरो इन एग्जैक्ट सेंटर। द ग्राफ अपीयर्स टू बी लाइक दिस। फिर आप जैसे जैसे डी से आगे जाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ फिर दोबारा लेफ्ट की तरफ, फिर राइट की तरफ बढ़ती जाएगी। आप देखेंगे लेफ्ट वाली इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जो कि फर्स्ट की थी वो कम होती जाएगी, और राइट वाली इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जो कि सेकंड वाले की थी वो फिर बढ़ती जाएगी। तो फिर राइट वाली इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ अब बड़ी होती जाएगी ना, दैट मींस द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ नाउ हैज अ पॉजिटिव वैल्यू। जैसे ही सरफेस पे पहुंचेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ फिर दोबारा ड्रॉप डाउन होकर जीरो हो जाएगी, लाइक दिस। But because the charge values are equal, that is why the electric field strength here and electric field strength here, they must have an identical value. Okay. Now let's draw this graph for electric potential. This was tiring. Anyway, आई होप दिस इज मेकिंग सेंस। अगर नहीं पता लग रहा तो फिर मुझसे दोबारा से पूछ सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अब यह है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। आपको पता है इनसाइड द स्फीयर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मस्ट हैव अ कांस्टेंट वैल्यू, बट पॉजिटिव के केस में, पॉजिटिव चार्ज के केस में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हैज अ पॉजिटिव वैल्यू, क्योंकि वो रिपल्सिव पोटेंशियल होता था। यहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल शुड हैव अ नेगेटिव वैल्यू। वेरी सेफली आई कैन गो अहेड और इतने सेक्शन के लिए भी मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऐसे ही नेगेटिव बना देता हूं। बट बिकॉज फॉर पोजीशन ए बी सी एंड डी, एज यू कंटिन्यू टू मूव अवे फ्रॉम द नेगेटिव चार्ज नंबर 1, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल शुड कीप डिक्रीजिंग, आई मीन कीप इंक्रीजिंग बट डिक्रीजिंग इन मैग्नीट्यूड, क्योंकि ये नेगेटिव चार्जेस है ना। नेगेटिव चार्जेस से जितना दूर आप जाएंगे पोटेंशियल उतना ही पॉजिटिव होता जाएगा, जितना किसी नेगेटिव चार्ज के करीब जाएंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल उतना ही नेगेटिव होता जाएगा। ओके, सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीजेस लाइक दिस, इवन दो इट इज जस्ट इंक्रीजिंग बट मैग्नीट्यूड डिक्रीज हो रहा है। इट मस्ट डिक्रीज टू अ मैक्सिमम वैल्यू व्हिच इज नॉन जीरो, लेकिन उसके बाद आप फिर दोबारा सेंट्रल पोजीशन के आगे आप नेगेटिव चार्ज के पास जाना शुरू कर देते हैं। सो द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल शुड start to decrease again but increase in magnitude. This must be the graph for electric potential of negative charges. Negative charges आपसे पूछे नहीं जाते, positives ही mostly पूछे जाते हैं। Okay, now for this was case number 4. Moving on to case number 5. Two equal and opposite charges on hollow spheres. अब इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस के केस में ये दोनों ग्राफ्स कैसे बनेंगे मैं आपको ये बना के दिखाता हूँ। पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव स्फीयर। ओके, इस पर मेरे पास पॉजिटिव चार्जेस हैं, हम्म और इस पर नेगेटिव चार्जेस हैं। Let's see, this can be a little tricky but not as much. We have dealt with trickier things in our syllabus. यहाँ पर है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, यहाँ पर है डिस्टेंस। अगेन मैं रेडियस पहले दिखा देता हूँ दोनों के। ओके, हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इनसाइड शुड बी जीरो, दोनों केसेस में इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इनसाइड शुड बी जीरो। नाउ एट दिस पोजीशन मैं यहाँ पर सिर्फ 3 पोजीशन, चलो 4 पोजीशंस दिखा देता हूँ। ओके,
5 दिखानी पड़ेगी ना, एक सेंट्रल पोजीशन भी तो होगी। एनीवे ये है पोजीशन ए। यहाँ पर ये पहले स्फीयर की इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगी टुवर्ड्स द राइट, और ये दूसरे वाले स्फीयर की इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ होगी कम, लेकिन टुवर्ड्स द राइट ही होगी। फिर उसके बाद हम जैसे जैसे ए से बी की तरफ मूव करते हैं, ऊपर वाले ये जो पहला स्फीयर है इसकी फील्ड स्ट्रेंथ वीकर हो जाएगी, नीचे वाले की थोड़ी सी स्ट्रॉन्गर होगी। सेंट्रल पोजीशन पे पहुंच के दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एक जितनी हो जाएगी, लेकिन क्योंकि ये डिस्टेंस दोनों से ऐसे पोजीशन पर है कि दोनों से एक जितना और मैक्सिमम डिस्टेंस है, आप इस सेंट्रल पोजीशन से आगे जाएंगे तो 1 से डिस्टेंस कम होता जाएगा, सॉरी ज्यादा होता जाएगा, 2 से डिस्टेंस कम होता जाएगा। बट सेंट्रल पोजीशन ऐसी है जहां पर दोनों पर एक जितना डिस्टेंस है, और ऐसा फिर कभी किसी और पोजीशन पे नहीं होगा कि एक जितना डिस्टेंस हो और मैक्सिमम हो। इससे आगे जब जाते हैं तो 1 की इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ और कम हो जाती है, 2 की इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। फिर इससे आगे आखिरी पोजीशन पे जब जाएंगे तो 1 की फील्ड स्ट्रेंथ और छोटी हो जाएगी, 2 की और बड़ी हो जाएगी। लेकिन आप देखें कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ पॉजिटिव वाले की टुवर्ड्स द राइट है, नेगेटिव वाले की भी टुवर्ड्स द राइट है। यानी ऐसी कोई पोजीशन नहीं आएगी जहां पर ये इक्वल एंड ऑपोजिट हो जाए, तो इसलिए वो कैंसिल आउट ही नहीं हो सकते कहीं पे। बिटवीन द स्फीयर्स द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ बोथ द चार्जेस पॉइंट इन द सेम डायरेक्शन। इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ऐड अप होकर कभी भी जीरो नहीं हो सकती, क्योंकि डायरेक्शन सेम है। लेट्स से सेंट्रल पोजीशन पे इसकी फील्ड स्ट्रेंथ है 2, इसकी भी फील्ड स्ट्रेंथ है 2, लेकिन चूंकि दोनों राइट की तरफ है, ऐड अप होंगी तो राइट वाली से ऐड होकर आंसर आपको 4 दे देगी। दैट इज व्हाई इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इज नेवर गोइंग टू बी जीरो, नेवर जीरो इन द सेंटर। ऐसे ही आपकी मालूमात के लिए बता रहा हूं, ये मैंने एक रैंडम पॉइंट चूज किया है, लेट्स कॉल दिस पॉइंट टू बी पी। एट दिस पोजीशन पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ टुवर्ड्स राइट होगी, लाइक दिस। हो सकता है कि नेगेटिव चार्ज की पोजीशन भी उतनी ही हो, बट इट मस्ट बी टुवर्ड्स द लेफ्ट। सो इन दिस केस द जीरो फील्ड लोकेशन कैन एग्जिस्ट आउटसाइड द स्फीयर्स, आउटसाइड द सिमेट्री, यानी कि इनके सेंटर में कहीं पे जीरो फील्ड नहीं आ सकती, इनके लेफ्ट और राइट पर आ सकती है। अच्छा जी, लेट्स ट्राई एंड ड्रॉ द फील्ड स्ट्रेंथ इनसाइड। यहाँ पर स्फीयर की बाउंड्री पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू थी, फिर उसने डिक्रीज होना है लेकिन जीरो नहीं होना। जीरो नहीं होना इसका मतलब है इसके बाद फिर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ दोबारा बढ़ती जाएगी। एंड बिकॉज दे हैव सेम चार्जेस, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इंक्रीजेस टू द सेम मैग्नीट्यूड ऑफ वैल्यू ऑन आइदर सर्फेसेस ऑफ द चार्जेस। दिस इज व्हाट द ग्राफ लुक्स लाइक फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ व्हेन दे आर ऑपोजिटली चार्ज्ड। अब यहीं पर इसके साथ ही इस वीडियो का आखिरी ग्राफ आपको बना के दिखा रहा हूं, जिसमें वाई एक्सिस पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल रखना है मैंने, और एक्स एक्सिस के ऊपर डिस्टेंस रखना है। मैं रेडियस इंडिकेट कर देता हूँ ग्राफ के ऊपर, ये पहले का रेडियस है, ये दूसरे का रेडियस है, यहाँ से यहाँ तक। ओके, नाउ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपको पता है जैसे जैसे आप पॉजिटिव चार्ज से अवे जाते हैं वो डिक्रीज होता है, फिर जैसे जैसे आप नेगेटिव की तरफ जाते हैं वो इंक्रीज होता है, बट ऑन द नेगेटिव साइड। इसका मतलब ये है कि सेंटर में कोई ऐसी पोजीशन जरूर आएगी जहां पर दोनों के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्वल एंड ऑपोजिट होंगे। पॉजिटिव चार्जेस के पोटेंशियल ऑपोजिट नहीं हो सकते थे, जैसा कि केस 1 था, आई थिंक केस 2 था। यहां पर यह है कि पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो एक मैक्सिमम वैल्यू से स्टार्ट होता है, लाइक दिस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीज होता जाता है, सेंट्रल पोजीशन में ऐसी लोकेशन आती है जहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो कि पॉजिटिव का रिपल्सिव है, नेगेटिव का अट्रैक्टिव है, इक्वल एंड ऑपोजिट हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्रॉप्स डाउन टू जीरो, और फिर उसके बाद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नेगेटिव साइड पे बढ़ना शुरू कर देता है। जैसे जैसे आप नेगेटिव के करीब जाते जाएंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नेगेटिव होता जाता है। अगेन सरफेस पर पहुंचकर पोटेंशियल की वैल्यू नेगेटिव होती है, फिर उसके बाद वो जीरो हो जाता है। ओके, सो वी कवर्ड क्वाइट अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन हियर। के 5 केसेस हमने डिस्कस किए हैं, आप इनमें देखिएगा कि आपको कौन सा वाला केस सबसे मुश्किल लगता है। नहीं पता लगता है, यू कैन रीवॉच द वीडियो, फिर भी नहीं पता लगता है, यू कैन टॉक टू मी। मैग्नीट्यूड्स ऑफ चार्जेस चेंज कर देने से ना ये मैक्सिमम वैल्यूज चेंज हो सकती हैं, बस शेप्स पे कोई फर्क नहीं पड़ता, या सेंट्रल पोजीशन लेफ्ट या राइट की तरफ शिफ्ट हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन इफ द पार्टिकल इज ग्रेटर इन मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज और नॉट। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग मी हियर, सी यू इन अनदर वीडियो सम अदर डे, कीप स्टडीइंग, कीप वर्किंग हार्ड, अल्लाह हाफिज।